Shahid Akhtar ji, National Convener and Officiating Chairman of NSNCFDI, Shri Ahmad Malik Wadiyar ji, Convener of this program. Distinguished guests, office bearers, media friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Vanakkam. It is my privilege to address today on behalf of the Muslim Rashtriya Manch, an organization dedicated to strengthening national unity, social harmony, and the constructive participation of Indian Muslims in nation building. The Muslim Rashtriya Manch was founded in 2002. Since its inception, under the guidance and inspiration of Honorable Shri Indresh Kumar ji, MRM has worked tirelessly to build bridges of trust, promote communal harmony, and encourage Muslims to actively contribute to the progress and prosperity of our great nation. The primary aim of MRM is to strengthen the spirit of patriotism among Indian Muslims while promoting peace, brotherhood, education, women empowerment, environmental protection, social service, and constitutional values. We firmly believe that our identity as proud Indians unites us above all differences, and together we can build a strong, more prosperous India. The guiding force behind this movement is our respected chief patron, Honorable Shri Indresh Kumar ji. His vision, dedication, and tireless efforts have inspired thousands of people across the country to work towards national integration, communal harmony, and inclusive development. Under his guidance, Muslim Rashtriya Manch has expanded its reach to every corner of the nation. To effectively serve society, MRM has established several dedicated cells that work in different sectors. These include Youth Cell, Women's Wing, Legal Cell, Environmental Cell, Gau Seva Cell, Madrasa Cell, Intellectual Cell, and various social service initiatives. Through these platforms, MRM conducts awareness programs, educational activities, environmental campaigns, tree plantation programs, etc. In South India, we have witnessed remarkable growth over the years through the collective efforts of our dedicated office bearers and karyakartas. MRM has strengthened its presence across Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh, Puducherry, and Lakshadweep. Yes. நல்ல காரியம் நடக்கும்போது கைத்தட்டலோட இந்த உற்சாகத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். जनाब इंद्रेश कुमार जी के आदेश के अनुसार आज अभी जनाब अहमद मलिक वदियार जी को तमिलनाडु का कन्वेनर यानी संयोजक बनाया जा रहा है।
शुक्रिया, धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन सर। इस जो भी चीज मैं इंग्लिश में भी बोलना चाहूंगी, इन रिकग्निशन ऑफ द सर्विसेज rendered by him and in order to spread the ideology and programs of MRM in the state of Tamil Nadu, we are proud to appoint Mr. Ahmed Malik Wadiar, a reputed entrepreneur, as the convener of the Muslim Rashtriya Manch from today. And here we go. Let's give him a huge round of applause. Let's wish him and let's cherish the moment together. Once again, a big round of applause for Mr. Ahmed Malik Wadiar. Come on, everyone. A moment. So that's so kind of you that you are here and felicitating our Honorable Dr. Indresh Kumar ji as well. Ladies and gentlemen, I request you all to please be a part of this moment by giving a huge round of applause. Thank you, sir, for stepping onto the stage and So even our bishop is here felicitating Mr. Ahmed Malik Wadiar, and that's so kind of you, sir. Thank you once again for taking us through the insights so deeply and deserves respect. And here he is presenting a sapling to our Honorable Dr. Indresh Kumar ji. Nandri sir, Roma Nandri. हाँ sir. May I request Mithilesh Kumar Kateria to kindly step forward and felicitate him with a shawl? Yes. हाँ. And may I request Shri Vijay Shankar Mishra to kindly. So he is here to give us a message that along with humanity, environment also is equally important. And I ensure I will speak in Hindi, English, Urdu, Farsi, and many other languages. I won't speak in one language. If I will speak in one language, you will say me a communal. So I will speak multilinguistic. From lakhs and lakhs of years, Bharat is known as Vishwaguru. It is continued. No objection in the world is there. It was remained truth and it is truth. New name as a Vishwaguru. We know that song. सारे जहां से अच्छा. मैं एक दो कहूंगा, सब बुलंद आवाज में इस पंक्ति को बोलेंगे. सारे जहां से अच्छा. एक दो. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा. सारे जहां से अच्छा. बट नेवर यू हर्ड सारे जहां से अच्छा इंग्लैंड हमारा. एवर यू हर्ड सारे जहां से अच्छा तुर्किस्तान अरब हमारा. एवर यू लिसनड और स्पोकन सारे जहां से अच्छा अमेरिका, इटली, कंबोडिया हमारा. सारे जहां से अच्छा रूस और चीन हमारा. You never heard it, you have never spoken it. But in the world, no is a authority who says, कि now change this song. There is no in the world who says, भारत विश्व गुरु था, now it is changed, the भारत विश्व गुरु नहीं है.
My dear brothers and sisters of India, be always alert. Variety is always a beauty. Variety doesn't mean hate. Variety doesn't mean quarrel. Variety doesn't mean convert. Variety doesn't mean to fight. The variety doesn't mean there can't be a unity, love. Variety is a symbol of love. We have to choose the one. There is a one hatredness, there is a one is mohabbat, love. Our destination is hatredness or a love. Our behavior is love or a hatredness. I hope so. If anybody gives us a choice to choose either a hatredness or a love, so our choice will be not hatredness but love. मैं कहूँगा, एक नया नारा लगाएंगे, मैं कहूँगा not hatredness but love is our choice. Not hatredness but love is our choice. आप बोलेंगे love is our choice. Not hatredness, not hatredness, not hatredness. ध्यान रखिए, कानून बन चुका है, अगर तलाक दिया तो जेल जाना पड़ेगा, बीवी को मोहब्बत की तो इज्जत मिलेगी और जन्नत मिलेगी. When the God, Khuda, Ishwar, has been asked a one question, इस सृष्टि में भगवान ईशु, खुदा, ईश्वर, वाहेगुरु, उसको सबसे ज़्यादा नापसंद क्या है? द आंसर ऑफ द खुदा, द आंसर ऑफ द गॉड, द आंसर ऑफ ईशु, द आंसर ऑफ परमात्मा एक ही था, तलाक. When you go to the Quran Sharif, you have a very beautiful line. माँ के कदमों में, माँ संस्कृत का शब्द है, माँ अरबी का शब्द नहीं है. कदमों फारसी का शब्द है, अरबी का शब्द नहीं है. जन्नत अरबी का शब्द है. इसलिए when three languages comes together, the phrase is माँ के कदमों में जन्नत. इसलिए to love the motherland, मादरे वतन, is a most beautiful इंडियननेस. अंग्रेजी के अंदर नारा लगाएंगे, मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप बोलेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया. इतना धीरे बोलना कि बाहर सुने नहीं, पर इतने जोर से बोलना कि पूरे तमिलनाडु में गूंज जाए. आई होप सो. इट इज ए चैलेंज टू ऑल ऑफ अस कि हम इतना बुलंद आवाज में बोलेंगे कि सारे तमिलनाडु में नहीं सुने, लाहौर और ढाका को भी सुन जाए. सो पीस कैन बी देयर, यूनिटी कैन बी देयर, लव कैन बी देयर. लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू. क्या लगता है ढाका में और लाहौर में सुन गया होगा? नहीं सुना होगा. तो फिर पीस कैसे आएगी? फिर लव कैसे आएगा? तो वंस जरा मोर लाउडली, लव एंड सैल्यूट टू,
more loudly. Love and salute to. अब उर्दू और फारसी में बोलेंगे. मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद. मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान. कभी कभी आप लड़ते भी होंगे आपस में. लड़ते समय भी इतनी ऊंची आवाज में लड़ते हैं या इससे ज्यादा ऊंची आवाज में लड़ते हैं? लड़ते समय तो आप बहुत ऊंचा लड़ते हैं और मोहब्बत करते हुए आप इधर उधर भटक जाते हैं. जिस समय झगड़ा करना हो तो किसी से भी कर सकते हैं, पर जब भाईचारे से रहना हो तो आवाज गूंजती नहीं है. तमिलनाडु का और साउथ का मैसेज टू द नेशन, मैसेज टू द वर्ल्ड कौन सा होना चाहिए? पीस है तो फिर पीस बोलनी चाहिए. अगर नफरत है वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो आप अपने आप कर लेते हैं. क्योंकि नफरत भी, अगर मैंने कहा कि इन दो चीज़ों का रेजिडेंशियल एड्रेस ढूंढिए और ऑफिशियल एड्रेस, नफरत और मोहब्बत, तो इनका रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ है? तो आवर हार्ट, माइंड एंड सोल इज देयर रेजिडेंशियल एड्रेस. मेरे और आपके हार्ट एंड माइंड के अंदर ही नफरत भी रहती है, मेरे और आपके हार्ट और माइंड के अंदर मोहब्बत भी रहती है. whom we says I love you very much, अगर आप नफरत को कहते हैं आई लव यू वेरी मच तो कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेते हैं, और अगर आप मोहब्बत को कहते हैं आई लव यू वेरी मच तो फिर पीस जन्म लेती है. महफिल आज की इसलिए सजाई गई है कि हम चेन्नई से एक नया मैसेज टू द नेशन एंड टू द वर्ल्ड देना चाहते हैं कि हम डिफरेंट लाइफ ऑफ रिलीजियस बिहेवियर्स की जी रहे हैं. तो इसलिए कुरान शरीफ ने कहा है लकुम दीनेकुम वलिया दीन, तेरा दीन तेरा, मेरा दीन मेरा. दीन अनेक रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे. इफ वी गो टू द क्रिश्चियनिटी, इट हैज ए 239 सब रिलीजन इन द वर्ल्ड. If we go to the Islam, it has 73 sub-religions in Islam. If we go to Sanatana, Jainism, Buddhism, Parsism, etc., it has 126 sub-religions. Nation, which has a respect for all the religions and place for all the religion, that is only India. इसीलिए सारे जहां से अच्छा. Can you call any other country which respects all, which give place to all, which gives position to all? हम में से पाकिस्तान बना. हमारे यहाँ पर all the 239 sub religion of Christianity, all the 73 sub-religions of Islam is also equally requested, जबकि पाकिस्तान में नहीं है. इसलिए अभी मैं देवबंद गया हुआ था डायलॉग के लिए, तो उन्होंने कहा डोंट कॉल इट पाकिस्तान, इट इज एन पाकिस्तान. आई हैव गॉन टू ए कश्मीर 4-5 days बिफोर. देयर वॉज ए इंटेलेक्चुअल मीट एंड सूफियत मौलाना's मीट. तो उन्होंने कहा डोंट कॉल इट पाकिस्तान, इट इज पाकिस्तान, यानी यह है जो दूसरों को बर्बाद करता हो वो कंट्री है. 47 में नेशन ब्रेक हुआ. उस ब्रेक होने के बाद हमने 5 हमले पाकिस्तान से और 2 युद्ध बांग्लादेश से भी किए. Be careful. Never the religion is an identity. Never the language is an identity.
Never the caste is an identity. Before 47, Lahore is known as Hindustan. After 47, India broke. Lahore and Dhaka becomes Pashchimi and Purvi Pakistan. In 71, Pakistan broken. This Lahore becomes East Western Pakistan से ये पाकिस्तान हुआ और ढाका जो था वो बांग्लादेश हुआ. I have a grand meeting in Assam with the Bangladeshis. मैंने कहा कि जब आपके पूर्वज जन्मे थे, they are Hindustanis. जब भारत टूट गया तो आप पाकिस्तानी बन गए. जब पाकिस्तान टूट गया तो आप बांग्लादेशी बने. आपका चेंज ऑफ आइडेंटिटी जो है इसे किससे कोरिलेट करती है? चेंज ऑफ आइडेंटिटी. ढाका का आदमी पहले हिंदुस्तानी था 100 साल पहले, फिर वो पाकिस्तानी बना और आज वो बांग्लादेशी है. मैंने कहा आपको कभी एक दिन सपना आए फिर से कुछ आइडेंटिटी चेंज करने की इच्छा करे तो वापस हिंदुस्तानी हो जाना, ठीक ठाक हो जाएगा. ये आपस का संकट, क्वर्ल, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, इससे मिलेगा क्या? मैं अभी बेलगांव गया हुआ था, मैंने कुछ नहीं मिला. घर में शांति से, देश में शांति से थे तो पानी के लिए लड़ पड़े. रिस्पेक्ट फॉर ऑल, इट इज ए वे टू पीस एंड डेवलपमेंट. हेट्रेडनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद ऑल, इट इज ए वे ऑफ शैतान. हज में उसको पत्थर मारे जाते हैं. शैतान के लिए पत्थर लिखा है, तभी आप हाजी बन सकते हैं. उसको मोहब्बत देंगे तो आपको बर्बाद कर देगा, पर इंसानियत को पत्थर देंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे. शैतान को पत्थर नहीं देंगे तो आप बच जाएंगे. पर शैतान बड़ा जोरदार है, हर साल पत्थर खाता है, मालूम नहीं कहाँ जाता है. अगले साल फिर हज के समय में तैयार होकर आकर खड़ा हो जाता है. पहले 2 लाख पत्थर मारा करते थे, आज 20 लाख 50 लाख पत्थर मारते हैं. इसलिए जिंदगी के अंदर शैतान नहीं बनना, जिंदगी का मिशन है इंसान बनना. जिंदगी का रास्ता है इंसान से भी फरिश्ता बनना. आज की महफिल में मैंने इसलिए स्वीकार किया था कि साउथ इंडियन सब इकट्ठे आएंगे. और इधर चेन्नई के अंदर मैं कुछ साल पहले भी आया था मुस्लिम के एक कार्यक्रम में. 2-3 बार मैं आ चुका हूँ. एक बार मैं ईसाई डायलॉग से भी आया था. हम जितने यहाँ बैठे हैं ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ऑफ डिफरेंट कास्ट हैं, ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स. आप सब से मैं पूछूं, आपको कभी आज तक एवर यू ड्रीम्ड इन इंग्लिश और लैटिन? सबको सपने आते हैं कि नहीं आते हैं? सपने आते हैं तो जरा हाथ खड़ा कर दो. जिनको कभी अपनी जिंदगी के अंदर इंग्लिश में या लैटिन में सपना आया वो हाथ खड़ा करो. आप कितना भी अंग्रेजी बोलिए, खुदा ने, ईश्वर ने आपको सपना अंग्रेजी में नहीं देना है. अंग्रेजी बोलना ये आपकी बनावट है. मदर लैंग्वेज में और मदरलैंड के लिए बोलना ये आपकी खुदाई है. इसलिए मैंने हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज से एक प्रश्न किया. यू स्पोकन इन इंग्लिश, आई विल आल्सो ट्राई टू स्पोक इन इंग्लिश. मैंने सुब्रमण्यम स्वामी से प्रश्न किया, यू टॉट इन हार्वर्ड, यू स्पोकन इन इंग्लिश. मैंने दोनों से पूछा, सुप्रीम कोर्ट के जज से भी पूछा और इस हार्वर्ड के प्रोफेसर से भी पूछा, हैव यू ड्रीम्ड इन इंग्लिश और लैटिन? कहते नहीं. मैंने कहा आज आप कोर्ट बुलाइए रात को 2 बजे और सोने से पहले
कहिए मिस्टर ड्रीम हाजिर हो, तो आएगा कि नहीं आएगा? ही वोंट लिसन यू। होंगे आप चीफ जस्टिस, उस पर नहीं चलती क्योंकि वो खुदाई है। मेरे और आप पर चल सकती हैं क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान में भी इंसान नहीं रहकर थोड़े गिर गए, लड़ते हैं, नफरत वाले हैं, इसलिए ऑर्डर चल सकता है, पर खुदाई पर ऑर्डर नहीं चल सकता। उनका सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा कि अब आप ट्राई करिए 2 साल कि आपको किसी दिन अंग्रेजी में या लैटिन में सपना आ जाए, अरबी में या तुर्की में आ जाए। आई वॉज इन ए कॉन्फ्रेंस ऑफ मौलानास। मैंने कहा आज तक आपको अरबी में और तुर्की में सपना आया है? उनका कभी नहीं आया। किस में आता है? हिंदुस्तानी। When God has decided this, when Khuda decided it, when the Rabb decided it, when the Allah decided it, when the Ishwar, Parameshwar, Paramatma decided it, to dream in Hindustani, who are we to go to against Hindustani? It means we are a man जो खुदा को भी डिनाई करेंगे, ईश्वर का भी डिनाई करेंगे, मुर्गन को भी नहीं सुनेंगे। इसलिए लिसन द गॉड, एक्सेप्ट द गॉड। लिसन द खुदा, एक्सेप्ट द खुदा। लिसन द ईश्वर, एक्सेप्ट द ईश्वर। जिसको इसने खुदा कहा, अल्लाह कहा, गॉड कहा, ईश्वर कहा, परमेश्वर कहा, वाहेगुरु कहा उसने, तो भगवान ने एक उत्तर दिया है दोस्तों। सब भाषाओं वालों का और मजहबों का अलग अलग उत्तर है। किसी का वो खुदा है, किसी का वो अल्लाह है, किसी का वो गॉड है, किसी का वो वाहेगुरु है, किसी का वो रब है, किसी का ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा है। परंतु फरिश्ताओं का, इंसानियत का एक ही उत्तर है, हर ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा वह ऊपर वाला है। और इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड ऊपर वाला कांट बी ट्रांसलेटेड। इफ यू गो टू द स्पेन, स्पेनिश विल कॉल हिम ऊपर वाला। इफ यू गो टू द अमेरिका, लैटिन कॉल इट ऊपर वाला। इफ यू गो टू द अरब और तुर्किस्तान, तुर्की एंड अरबी कॉल्ड इट ऊपर वाला। ऊपर वाला इज द कॉमन नेम फॉर ऑल इन द यूनिवर्स। तो इसलिए नॉलेज इज देयर, परंतु एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर। मनुष्य खुदा से बड़ा बनकर ना जी सका है, ना कभी जी सकेगा। ईसाई कभी गॉड से बड़ा बनकर ना जी सका है, ना कभी जी सकेगा। फॉर पीस एंड फॉर प्रॉस्पेरिटी व्हाट इज द बेसिक नीड? रिस्पेक्ट ऑल, फॉलो योर ओन। व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट अदर्स, आपका बेटा भी आपके खिलाफ बगावत करके लड़ाई कर ले, घर तोड़ देगा। इसलिए रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी इज ए वे टू पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। डिनाइंग एनीबॉडी एंड इंसल्टिंग एनीबॉडी इज ए conflict. Some days before, Iranian ambassador came to me to meet us. तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर से? मैंने कहा हम इंडिया के इंडियन हैं, हम ईरान के ईरानी नहीं हैं, हम अमेरिका के अमेरिकन भी नहीं हैं, हम इजराइल के इजरायली भी नहीं हैं, हम भारत के भारतीय हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, इंडिया के इंडियन हैं। इसलिए हम ये कहेंगे स्टॉप दिस नॉनसेंस। वी वांट पीस इन द वर्ल्ड, नॉट द कन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। यू आर गिविंग कन्फ्लिक्ट्स टू द वर्ल्ड, वी वांट पीस इन द वर्ल्ड। इसलिए हमारा मैसेज ये है कि स्टॉप दिस नॉनसेंस। आखिरकार आप इतने साल लड़ लिए और इतने साल और लड़कर करेंगे क्या? क्या नौकरी मिलेगी? क्या कोठी मिलेगी? क्या जॉब मिलेगी? क्या डिग्री मिलेगी? वट यू विल गॉट? ओनली बर्बादी, बर्बादी, बर्बादी। वी इंडियन डोंट वांट बर्बादी, वी इंडियन वांट डेवलपमेंट। इसलिए माई मैसेज
to the America, Trump, my message to the Quran Khamenei, my message to the Netanyahu, Israel, stop this शैतानियत, इस शैतान की एक्टिविटी को छोड़िए। इसलिए इंडिया का ये मैसेज है, इसलिए इंडिया ही है एक देश जो कहलाता है सारे जहां से अच्छा। किसी में हिम्मत नहीं है वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को मिटा सके। जब दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती तो इसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस है। हम सब के फोटो अगर छपकर डाल दिए जाएं तो हम चाहे तमिलनाडु के हैं, चाहे केरल के हैं, चाहे पांडुचेरी के हैं, चाहे कर्नाटक के हैं, चाहे आंध्र के हैं, चाहे कश्मीर के हैं, मैं भी कश्मीर से ही आया, कहीं के भी हैं, और कहे कि लिखिए ये कौन से फेसेस हैं। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड विल राइट दीज आर द इंडियन फेसेस, वी आर ऑफ द कॉमन फेसेस एंड वी आर द इंडियन फेसेस। हु गिवन अस ए फेस? You are not the chooser of the face. Myself is not the chooser of face. Who has provided us as a beautiful face? ये काला होगा, ये गोरा होगा, ये तमिल का होगा, ये केरल का होगा, ये मलयाली का होगा, परंतु दुनिया called it all are Indian faces. World knows you are Indian faces. We sometimes go to the wrong. नहीं, we are Tamil face, we are Kannada face, we are a Kashmiri face, we are a Bengali face, we are a Asmiya face. पर वर्ल्ड नोज हम सब इंडियन फेस थे, हैं और रहेंगे। इसलिए नेवर देयर शुड बी ए क्वारल बिटवीन द लैंग्वेजेस, नेवर इन द वेज ऑफ वर्शिप देयर शुड बी ए रिस्पेक्ट फॉर ऑल थिंग्स। इसलिए हमने अंग्रेजी में भी नारा लगाया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया। हमने फारसी में और उर्दू में भी नारा लगाया, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब हिंदी में लगाएंगे, भारत माता की, उसी बुलंदी से लगाना, भारत माता की, भारत माता की। एक हिंदुस्तानी में लगाएंगे, मैं कहूँगा एक हिंद, आप सब कहेंगे जय हिंद। एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद। संस्कृत में भी लगाएंगे, वंदे वंदे वंदे। इन 5-6 लैंग्वेजेस यू कॉल्ड सैल्यूट द मदरलैंड। आप बताइए किसका मजहब खतरे में आ गया, किसका दीन खतरे में आ गया, किसकी नेशनैलिटी खतरे में आ गई, किसकी स्टेटहुड खतरे में आ गई, किसका रिलीजन खतरे में आ गया। इट मीन्स वी आर फाइटिंग अननेसेसरली बिकॉज आवर मैसेज टू द आइडियोलॉजी इज नॉट लव, इज ए हेट्रेडनेस। जिस दिन हमारा मैसेज होगा वी लव ईच अदर, वी आर लव ईच अदर, लव लव लव, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, उस दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी। वी केम हेयर टू डाई दैट नफरत, हेट्रेडनेस। वी आर नॉट हेयर टू लिव विद ए हेट्रेडनेस, वी आर हेयर टू लिव विद ए लव। हम इसके लिए आए। इसलिए वाडियार साहब ने एक शानदार जानदार कार्यक्रम किया, तालियां बजाकर एक बार सम्मान कर दीजिए। थैंक्स टू हिम। आप सब यहाँ आए और आप सब ने बड़ा लंबा, मैं उनको कह रहा था कि तमिलनाडु के अंदर इतने घंटे तक सब लोग भाषण सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, चूहे बिल्ली की लड़ाई भी हो गई होगी, भूख भी लग गई होगी, तो हमने कितनी देर तक जुल्म करना आप सब पर। तो मैं कह रहा था कि हर स्पीकर आ रहा है, अपना भाषण दे रहा है और आपको पनिश कर रहा है और आप पनिशमेंट लेते जा रहे हैं। तो आप सबका टॉलरेंस बड़ा गोल्डन है, सो आई सैल्यूट योर टॉलरेंस। इसलिए फॉर योर गोल्डन टॉलरेंस आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको बहुत 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 बधाई देता हूँ। और ये मूवमेंट ऑफ लव, मूवमेंट ऑफ रिस्पेक्ट
नॉट ऑफ हेट्रेडनेस, नॉट ऑफ कन्वर्शन। अपने पर चलो, दूसरे का पालन करो। आई वॉज ए चाइल्ड स्टडिंग इन द 3rd class. In which village we are there. The school is another side of the village.